have an esteemed guest, Professor Dr. Shobna ma'am. Ma'am is one of the finest professor in the Department of English in Parul University. So ma'am, welcome to my channel. Thank you, sir. Thank you for having this topic, whichever you have decided. I don't know still. So आज का जो टॉपिक है मैम, साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी. Okay. बेसिकली क्या होता है, आज सोशल मीडिया जब भी हम खोलते हैं या देखते हैं तो बार बार आता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात और सारी चीज. तो इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे. Okay. सो मैम, आप मुझे इजी भाषा में समझाइए कि आपका हिसाब से एस्ट्रोलॉजी है क्या? According to my knowledge, whatever I have seen till now, आज तक जो देखा है और समझा है, उसमें ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक ही फेज नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि किसी के पास जा रहे हैं और ही इज टेलिंग यू समथिंग. इट इज एक्चुअली कैलकुलेशंस. इट इज समटाइम अ बिलीफ. It is sometimes a blessing which a person has got. So there are many parameters of astrology. We cannot say कि वो astrology study तो है, वो astrology planets की study है, लेकिन it has various aspects and perception also, and people have that power, develop that power, I should say. ओके मैम. सो मैम, डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी आज का टाइम में भी जो एंशिएंट टाइम से लोग विश्वास करते हैं आज भी उतना ही वैल्यूएबल है? अभी पहले तो इतना मतलब people used to believe on this so much, but nowadays the thing has changed. They are now coming back to again ancient knowledge. आजकल के बच्चे चाह रहे हैं कि फिर से वो देखें कि पहले ऐसा कैसे होता था. They want to have a rational thinking, या फिर they want to understand the logic behind astrology. और उस कारण से और बिलीव करने लगे हैं, and they want to know more about it. And the second most important factor which I feel is कि आजकल बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में बॉर्न हो रहे हैं. They don't have anybody to guide them. So एक ये easy medium है where they can get some advice for their life, how to lead the life and how to become successful easily. This is what I feel that आजकल फिर से ये ट्रेंड शुरू हुआ है बच्चों का. ओके मैम. सो मैम, किस लिए इंसान, किस लिए मतलब आपका हिसाब से किस लिए ह्यूमन बीइंग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में आज के ज़माने में? आज के ज़माने में बच्चों को क्या है कि वी डोंट हैव पेशेंस. हमको चाहिए इजी सक्सेस, इजी लाइफस्टाइल. जो लाइफस्टाइल हमने व्हेन इन आवर एज वी आर गेटिंग इन 50 इयर्स 60 इयर्स, दे वांट इट जस्ट आफ्टर देयर स्टडीज. तो उनको जो क्विकनेस है, फॉर दैट इजी पाथ दे वांट, और उसके लिए वो देखते हैं कि कोई ना कोई मुझे मेजर मिल जाए, सो दैट आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स and along with it I am doing something related to what is the prediction, and so that I can become more easily able to get that particular comfort level. So this is my idea. ओके मैम, क्या डू यू बिलीव डेस्टिनी और फ्री विल? I believe in destiny because many things have happened in my life which is according to the destiny. एक दो एग्जांपल में. जैसे कि if I am talking about my PhD, that was a destiny, and because of that I could complete it. Because there were many challenges, many hurdles from the beginning till the end. But since it was a destiny, I could finish it off and I could avail that pleasure movement for me. So this is one of the example. Even my son when he was born, तो वो भी एक destiny थी. So these are the few things which I feel that these are the milestones, or you can say they have उन्होंने एक छाप छोड़ दी है कि हाँ भाई डेस्टिनी कुछ ना कुछ होता है. तो एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड में आपका भाषा में? हाँ, वी आर एक्चुअली, देखो आपने शेक्सपियर पढ़ा है और सुना है, सब देखा है. वी आर ऑल द puppets in the hands of God. This is the real thing. But we cannot sit idle. कि भाई since it is destiny, it is planned, so we don't have to do. We have to keep on our efforts, our hope. Maybe few things will change according to our effort, because that is also very crucial. ऐसा नहीं है कि आप इंसान बस बैठ जाए कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है क्योंकि डेस्टिनी तो फिक्स है, मुझे तो मरना है ही सही. तो वो थ्रू आउट द लाइफ व्हाट ही विल डू. सो वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग फॉर द बेटरमेंट. ओके मैम, आप इंग्लिश का प्रोफेसर, आप बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे हो मैम, तो आपका हिसाब से ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट में भी आप बहुत टाइम, हम कल्चर में भी बोलो, लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत टाइम ऐसा एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन कुछ मिला है
ऐसे आपका हिसाब से ऐसे कोई टेक्स्ट में? देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, देयर आर मेनी वेयर वी आर, जैसे हम सावित्री पढ़ेंगे अरविंदो की, या फिर हुँ, तो हुँ। दे हैव टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी इन कॉमन पीपल, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। जैसे कि आप बोलते हैं कि ये इंटेलेक्ट क्लास लोग हैं, तो वो हु आर दीज इंटेलेक्ट, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग, दे आर अहेड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। कुछ लोग आपने, when we are talking about the novels and all, we have seen that how, if I'm talking about my own diasporic topic, because I have worked on diaspora, I'm seeing that every woman, when she is leaving the house, she is actually talking about, या उसका destiny है वहाँ पे जाना, इसलिए वो जा रही है, and then her life is completely turned because of being married in that particular age. सो मैम, क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, कम्फर्ट देते हैं, जब किसी का लाइफ में बहुत बुरा टाइम चलता है, बहुत खराब टाइम चलता है? या देखिए, बुरा टाइम और अच्छा टाइम तो इट इज अवर ओन परसेप्शन कि भाई हमने बना लिया कि ये बुरा टाइम है या अच्छा टाइम है, बट व्हेन यू आर गेटिंग सम एडवाइस, एक्स्ट्रा एडवाइस फ्रॉम समबडी लाइक अ गुरु, तो आपके पास यू हैव समबडी टू बैंक ऑन। उन्होंने ऐसा कहा है, लेट मी फॉलो इट एंड देन आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज हाउ द पीपल आर टेकिंग इट लाइक दैट। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि आपको सपोर्ट रहता है कि अगर मैं कहीं गिर भी जाऊंगा, माई गुरु विल हेल्प मी आउट टू कम या ओवरकम दैट पर्टिकुलर हर्डल। तो वो जो एक होप आ जाती है आपके अंदर, दैट विल हेल्प यू टू स्मूदन योर पाथ। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके। मैम, आज का टाइम में एस्ट्रोलॉजी तो एक काइंड ऑफ कमर्शियलाइज़ हो गया, बिज़नेस हो गया, तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल की, पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू थिंक अबाउट कि टू whom वी हैव टू अप्रोच। उसमें भी आपका नॉलेज, आप एवरीथिंग ऑफ योर, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड आपका पूरा ओवरव्यू ऑफ दैट पर्सन विल हेल्प यू टू डिसाइड। आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि उसने मुझे चूज लिया, बिकॉज यू हैव गॉन देयर, सो यू हैव टू डिसाइड बिफोर और आफ्टर यू आर एक्चुअली फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। ओके मैम। तो आपका हिसाब से क्या ब्लाइंड फेथ इज़ अ काइंड ऑफ डेंजरस थिंग? यस, डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग साइंस को अलग नहीं रख सकते, वी कैन नॉट, मतलब ब्लाइंड फेथ इज विल मेक योर लाइफ अ मेस। इट इज बेटर आप उसको समझें, वट एवर इज यू फील दैट इफ इट इज इन योर आइडियोलॉजी की ये सही है, दैट ओनली यू शुड डू। इट ओके। इज नॉट, इट इज अ कॉम्बिनेशन, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विल बी देयर, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना इसका है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि ना, मैं जितना समझ सकता हूँ आपका बातों में कि ना, आप डेफ़िनिटली मतलब एस्ट्रोलॉजी को फ़ॉलो करो, एट द सेम टाइम आप अपना जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसका आप खुद विश्वास करो वो चीज़, मतलब आप उसको एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल रहा है और वो ब्लाइंडली आप फेथ फेथ करो। यस, आपको सुनना सबका है, बट फॉलो आपको, यू हैव टू मेक योर ओन प्रिंसिपल्स, ओन थॉट प्रोसेस कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला है, दिस इज द रीजन। ठीक है, मुझे ये लगता है कि दिस आई कैन डू इट, ओके आई विल डू इट, बट नॉट एवरीथिंग। यू कैन नॉट फॉलो 100% ऑफ एनीवन, जिसका आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, माय बॉडी माय माइंड इज नॉट अलाउइंग, देन हाउ यू कैन डू इट। सो दिस इज योर आइडियोलॉजी आल्सो। तो आपका हिसाब से मैम, इवन जो भी अच्छा काम करने जाते हैं, इन द सेंस गेटिंग मैरिड और भी कोई गेटिंग जॉब और एनी जो गुड काम वर्क है, तो उस सेंस में आपको क्या है, एक बार एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए? हाँ, दिस कैन हेल्प यू फॉर योर इज़ीनेस। सपोज़ आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे किसी ने आपको बोला कि भई आप सूरज को जल चढ़ाइए, एंड दीज़ आर द 5 एलिमेंट्स व्हिच वी कैन कनेक्ट विद आवर बॉडी आल्सो। तो आप वो सूरज को जल चढ़ाने से यू आर नॉट मीन्स इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन, बट इट विल गिव यू सम पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ कि भई मुझे पावर मिला है सन का। एंड इट इज, अगर आप इस तरह से देखें, या फिर यू कैन गो विद द साइंटिफिक थिंग कि भाई एटलीस्ट योर बॉडी इज गेटिंग सम पॉजिटिव वाइब व्हेन यू आर सीइंग सम, तो ठीक है, दैट इज ओके, एग्रीबल। सो दिस इज हाउ वी कैन ओके। कंसिडर। सो माय फाइनल क्वेश्चन मैम, आपका हिसाब से स्टार ह्यूमन लाइफ को शेप करते हैं ना, ह्यूमन लाइफ का शेपिंग जो है, जो वो कैसे डू यू थिंक स्टार शेप द ह्यूमन लाइफ? या देखिए, अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर की बात मान के यू हैव मोल्डेड योरसेल्फ, एवरी डे यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड योर परसेप्शन एंड योर एक्शंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू हिम, तो फिर आपका यू हैव स्पॉइल्ड योरसेल्फ। आपको क्या चाहिए कि आपने उनकी बात भी मानी है, आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हो
for that particular thing which you are planning for, और फिर आप उसके आप मूव कर रहे हो, then it is a actual progress. इसका मतलब आप अपना ब्रेन भी यूज Brain use करना is compulsory. compulsory. Okay. So all of you, thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much for joining this session, and we are really privileged for your light of knowledge. Thank you, ma'am. Okay. So all of you, thank you. God bless you all. Thank you for this very interesting topic which is shared, and I think I have given some insightful Absolutely, information ma'am. which will be helping our new New generation. generation. Okay, thank you so much.